और गोल्डन वीजा क्यों लोगों को लेना चाहिए? लोगों को एक 4 पहिए वाली छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी क्यों लेनी चाहिए? जब मैंने लिया था तो मेरे लिए तो गोल्डन वीज़ा ही बड़ी चीज़ थी। गोल्डन वीजा क्यों लेना है? मिडिल ईस्ट में तो इतना अनरेस्ट है, वो बल्कि चाहिए कि मिडिल ईस्ट से वापस मूव आउट हो जाए, अपने अपने घरों को चले जाए। उसके अलावा वाला हर गोल्डन वीज़ा चांस पे है। ना उसकी कोई टाइमलाइन है, ना उसकी कोई कन्फर्मेशन। कि लोग आके बड़े ग्लोरीफाइड तरीके से कहते हैं हमें हमारे पास अपना वीजा है। ये कोई फखर की बात नहीं है। अगर आपने वीजा खरीदा है, कोई भी ऐसा फ्रीलांस वीजा अवेलेबल नहीं है। आप ये अगर समझो कि यूएई इज नाउ ओपन फॉर एवरीवन तो नहीं है। Hi everyone, this is Aksa Abdullah and you're watching us on our YouTube channel KWS Sharks and Suits, and we are here because we wanted to record a podcast especially for you, since you guys know that I have done an episode with Something Hot last week, where we covered golden visa and what are the rules and regulations. And surprisingly, I was overwhelmed with the response we got, and we got so many inquiries, so many questions from everyone. We got Instagram messages, calls, and DMs to me personally. So then we thought that why not to cover again this topic in detail. And today, joining me here with us, Abdullah Masood, who is a partner in business, a partner in life, and takes care of so many important segments in KWS Middle East, which is, of course, because I introduced my company last time as well. But I will let Abdullah also describe that what is his role and what he takes care in this organization. So, welcome, Abdullah. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने It's किस कैमरे में देख के कहना है ये? मुझे देख के अच्छा कहना है ठीक आपने। है। Um, so Abdullah, please tell us what exactly you do in KWS Middle East. What is your role? And tell us about KWS Middle East as well, because we could not cover everything last in our last podcast. That what exactly is our scope of work in all 4 different brands which we are running. So please tell our audience as well something about you. Uh, Thank you very much, first of all, for inviting me as a guest because I was free. But KWS is a venture where we are managing 4 different kind of scenarios. We are obviously into a business setup. We are doing the marketing and social media things which you do. I know nothing about it. Then we have the legal services, which I know few things about, and then we are into restructuring of different kind of businesses, and this is what KWS mainly does in its 4 different domains. And but the mother of the KWS is a business setup, of course. KWS when started like more than a decade before, it was a vision and the learning that how to bring the businesses to this beautiful place, because this can bring your dreams true. And यही वाली वजह थी जिसकी वजह से हमने ये बिजनेस स्टार्ट And किया it's था। all interconnected as well, because when we started establishing the businesses, we kind of figured out that there is a scope of digital services as well. There is a scope of legal services as well. That's why it kind of made sense. Actually, we tried to be a one stop shop. जब the moment we started bringing the businesses in, फिर हमें पता लगा कि एक बिजनेस आता है तो उसको उसके बाद क्या चाहिए, उसके सारे उसकी बिजनेस जर्नी का हम हिस्सा बने। ठीक है, तो उस जर्नी में एक एंटरप्रेन्योर के साथ मैं जब जब बैठा, मुझे उसकी जिस जिस चीज़ की ज़रूरत फील हुई, जैसे मुझे आज इस पॉडकास्ट स्टूडियो की ज़रूरत फील हुई है, तो हम इसको भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स वेयर वी थिंक दैट बिजनेस इज अ जर्नी, और KWS उस जर्नी में सक्सेस और फेलियर में जहाँ जहाँ पे आपका पार्टनर बन सकेगा, we'll try to be, and that's what is the vision with KWS. Okay, and what is your role mainly? I do whatever you tell me to do. Abdullah, please tell what is your role? My role is like a rolling stone in this company. I do everything from R&D learning. I learn the businesses. I learn how to set up the businesses. Then I have a very efficient and very nice team. Thanks to Aksa, she let me hire them and fire them. I just direct their selling skills, and uh, so from the sales director, I direct the sales direction of the consultants direction of the company.
Then my role comes in the administrative decision making. Of course, KWS is now doing very big in restructuring of a very few very established brands. So my job is to sit in their strategy as well, in our strategy as well. So I'm coordinating. I'm a corporate, uh, you can say, bridge between all the departments because of two things. One, I think I'm a good learner in this company. And second, I think I'm best. I do everything. All right, as you can see that Self Abdullah is obsessed. yes, kind of. So Abdullah, हमने लास्ट टाइम हसन के साथ एक पॉडकास्ट की थी जिसमें ही वांटेड टू एक्सप्लोर के ही वांटेड टू लेट हिज ऑडियंस नो कि गोल्डन वीज़ा उनको कैसे अवॉर्ड हुआ है और उसका पूरा क्या प्रोसेस था, और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, बट आफ्टर द वीडियो वेंट लाइव वी गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनको ऑफ कोर्स हम उस एपिसोड में तो कवर नहीं कर सकते थे। तो अब हम एक बार दोबारा इस टॉपिक पे ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सारे सवालों को हम कवर कर सकें और उन सब इंक्वायरीज को भी आंसर करेंगे, कुछ को जो हमने शॉर्टलिस्ट की हैं, जो हमें मैसेजेस आए हैं और जो ईमेल्स आई हैं। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि डिफरेंट कैटेगरीज जो हमने गोल्डन वीज़ा की लास्ट पॉडकास्ट में भी जिस कवर करने की कोशिश की थी और कवर करने की कोशिश की थी, क्या कैटेगरीज हैं मेनली फॉर गोल्डन वीज़ा क्वालिफिकेशन? लास्ट टाइम एक तो पहली बात यह कि वाकई रिस्पॉन्स वाज ओवरवेलमिंग। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बीइंग फ़ैन हम ऑब्जर्व करते थे, उन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया। और ऑफ कोर्स बहुत सारे वो लोग भी थे जिन्होंने कांटेक्ट किया, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो गोल्डन वीज़ा है, दैट इज़ अ गोल्डन वीज़ा, एंड दैट इज़ अ गोल्डन वीज़ा फॉर अ रीज़न, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। आई एम राइट। वेरी सॉरी इफ़ समबडी इज़ ऑफेंडेड कि वो ये समझे कि ये सिर्फ अमीर लोगों की बात है या गरीब लोगों की बात है। तो अमीर गरीब की बात नहीं, इट्स अ गोल्ड वीज़ा। राइट। ओके, मतलब देर आर मिलियन ऑफ अदर काइंड्स ऑफ वीज़ाज इन दुबई। यूएई इज़ अ वेरी फेयर कंट्री जिसने तुम्हें और मुझे चांस दिया। हमने ज़िंदगी में ग्रो किया यहाँ पे, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अगर पूछे तो उसको गोल्डन वीज़ा मिल जाए। बट गोल्डन वीज़ा की कुछ कैटेगरीज हैं। जिस तरह सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने इस कंट्री के लिए वाकई सर्व किया और इस कंट्री को उनकी ज़रूरत है, जिस तरह फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। आप यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, आपने कोरोना के दिनों में सर्व किया, आपने कई कई दिन खड़े होकर यहाँ पे सर्व किया। तो यहाँ पे फिर वो नर्स जिसकी इनकम शायद एक आम कमाने वाले आदमी से बहुत कम होगी, यहाँ पे उसको भी गोल्डन वीज़ा मिला। सो दैट इज़ दैट पार्ट ऑफ दुबई। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूएई के अंदर वो लोग जो कि टैलेंट्स हैं। मतलब अगर आप टैलेंट की भी बात करते हैं तो देन योर टैलेंट शुड मैच ग्लोबल लेवल। राइट। ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छी बात है, आप अपने इलाके, अपने जिस भी स्कोप में काम कर रहे हैं, आप अपने कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको वो कंट्री पर्क्स देगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि उस चीज़ का पर्क आपको यूएई दे, तो वो कुछ ग्लोबल लेवल की चीज़ होनी चाहिए ना। ठीक है, तो वो उस तरह के लोगों को टैलेंट बेस पे मिल रहा है। बहुत लाइक स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी मिल रहा है। ठीक है, जिनको यूएई अगर अपने पास रख के एजुकेट कराता है या उनको किसी किस्म का आगे वो चलते हैं, तो उसका बेनिफिट यूएई को भी हो सके। ठीक है, उसके बाद वो लोग हैं जिनसे नफरत है लोगों को, अमीर लोग। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि आप नहीं है। हाँ, इन्वेस्टर्स हैं, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट है, अगर उस अमाउंट की मिनिमम कि आप रियल एस्टेट लेते हैं या उसके लिए प्लज करते हैं 24% अमाउंट और बाद में आप उसको कंप्लीट पेमेंट करते हैं, उन लोगों को मिलते हैं। आप अपना टर्म डिपॉजिट में अब ज़ाहिर है कंट्रीज़ कैसे चलते हैं, उनका एक नेशनल उनका एक सेंट्रल बैंक होता है, उसके अंदर कुछ पैसा डिपॉजिट होता है, वो लैंडिंग करता है, बोरोइंग करता है उस पैसे के थ्रू। ठीक है, आप उस तरीके से ऐसा इन्वेस्टर जो कि पैसा यहाँ पे लाके इस कंट्री की सर्कुलेशन में डाल रहा है, उसको मिलता है। राइट। फिर एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योर, आप कितने अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता। आपके एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ रिक्वायर्ड हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वो एक स्पेशली उसके लिए एक अथॉरिटी है जो कि उसको चूज़ करती है कि उसको वाकई वो वाला आइडिया पे लोगों का काम चाहिए, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। फिर अब ज़ाहिर है आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, ज़ाहिर है जिनका फेम यहाँ पे टूरिज़्म लेके आ सकता है, जिनका फेम यहाँ पे
लोगों को अट्रैक्ट करवा सकता है डिफरेंट किस्म की चीज़ों के लिए, उनको मिलता है, जिनमें से हसन एक है। सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ गोल्डन वीज़as। अच्छा, एक और चीज़ हमने इसमें इसी दौरान मुझे एक और इंक्वायरी ही आई है, जिसमें एक साहब हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है यूएई के अंदर, और उनकी इन्वेस्टमेंट एलिजिबल क्राइटेरिया में भी फॉल करती है। बट बिकॉज गोल्डन वीज़ा के प्रोसेस को पूरा करने के लिए यू नीड अ टूरिस्ट वीज़ा, और क्योंकि टूरिस्ट वीज़ाज बंद हैं, और ये हम स्ट्रगल कर भी रहे थे हसन के वीज़ा के साथ भी, कि जब टूरिस्ट वीज़ा ही नहीं हम निकाल सकते तो फिर हम गोल्डन वीज़ा की एप्लीकेशन पूरी नहीं कर सकते। सो उस सिचुएशन में ऐसे लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, या ऑलरेडी फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने हमें रीच आउट किया है, एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशंस विद देम। बट जब आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा ही नहीं निकाल पा रहे उनका, तो फिर उन लोगों को क्या सजेशन करना चाहिए? क्या सजेशन आपकी तरफ से होगी कि वो क्या करें? आपको पता है उसके लिए कुछ वेज हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर आप गोल्डन वीज़ा क्राइटेरिया में फॉल कर चुके हैं, हुँ, ठीक है, तो उसके लिए तो अब वैसे भी वीज़ाज ओपन हैं इस लेवल के लोगों के लिए, राइट। जिनकी बैंक स्टेटमेंट हुँ, $5,000 to $6,000 कंटिन्यूसली शो कर रही है कि पड़ा हुआ है उनके पास। होटल का अरेंजमेंट है यहाँ पे, देर इज़ अ वे टू गेट अ टूरिस्ट वीज़ा फॉर देम, वो मसला नहीं है। दैट्स द मल्टी एंट्री वीज़ा। यस यस, वो है, और वो प्रोसेस है और उसे मिलता भी है वीज़ा। दूसरा तरीका है कि आपको ट्रांजिट वीज़ास मिल जाते हैं, देर आर वेज टू गेट दैट। मेरी कहने का ये मतलब है कि एज फार एज यू आर रेडी, दैट यू वांट टू टेक सम वे एंड यू आर कंसल्टिंग द राइट पर्सन, यू विल फाइंड द वेज। बट अगर आप अच्छा, उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम बिज़नेस क्लास की टिकट लेके अगर ट्रांज़िट वीज़ा लेने की कोशिश करेंगे तो वो टिकट इतना महँगा होता है, और अगर ट्रांज़िट वीज़ा ना मिला, तो वो पैसे तो ज़ाया हो जाएँगे। नहीं, आप जब टिकट बुक कराते हैं आपको एडवांस में ट्रांजिट वीज़ा मिलता है, आप साथ अप्लाई करते हैं, आप वेबसाइट पे जाएं उस एयरलाइन की, जिस एयरलाइन का यू आर टेलिंग पीपल, मिलता है। और अगर नहीं मिलेगा तो आप रिफंड भी ले सकते हैं, ऑफ कैंसल करवा कोर्स, सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू देर कैन आर डू। लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर आप ये कहें कि बिजनेस क्लास की टिकट महंगी होती है, तो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे महंगी होती है। और गोल्डन वीज़ा क्यों लोगों को लेना चाहिए, या लोगों का इतना इंटरेस्ट, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई पीपल आर inclined towards golden visa, and why they're so obsessed with the concept of having a golden visa, in your opinion? लोगों को एक चार पहिए वाली छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी क्यों लेनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कि अगर आप ये हर चीज़ का सोचना चाहो कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? गाइस, प्रिविलेजेस का मतलब कतन ये नहीं होता कि वो आपकी नीड्स को पे ऑफ कर रही हैं। Mhm. आपकी नीड तो पे ऑफ हो जाती है कहीं से भी। व्हेन यू वांट टू बी प्रिविलेज्ड, आउटस्टैंडिंग, तो उसके लिए मेरे ख्याल से जब मैंने लिया था तो मेरे लिए तो गोल्डन वीज़ा बड़ी चीज़ थी। Right. आज मैं बीइंग अ पाकिस्तानी अगर लोगों को बताऊं कि तुम्हारे पास टूरिस्ट वीज़ा नहीं है और मेरे पास गोल्डन वीज़ा है, तो ये काफ़ी है। ठीक अच्छा, है। एक और ग्रुप ऑफ पीपल भी है जो कि ये भी कह रहा है कि गोल्डन वीज़ा क्यों लेना है, मिडल ईस्ट में तो इतना अनरेस्ट है। मिडल ईस्ट में अब तो सबको बल्कि चाहिए कि मिडल ईस्ट से वापस मूव आउट हो जाए, अपने अपने घरों को चले जाएं। और वो भी एक एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस किस्म की गुफ्तगू भी चल रही है। अब मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ हूँ। प्लीज़, जितने लोग जाना चाहते हैं वापस चले जाएं, मैं और अक्सर ओपन टू टेक टेक केयर फॉर देयर एसेट्स। प्लीज़ जल्दी से चले जाएं वो लोग। और हाँ, और वो मैं बता रहा हूँ, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ से बैठ के सारी बातें कर रहे हैं, जिनका अपना रेस्ट करने का इंतज़ाम अभी तक प्रॉपर नहीं नहीं, लेकिन लेकिन है। इस सवाल को सीरियसली जवाब देना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम मिडल ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। ये जो एक एक फ़िज़ा बन गई है, क्योंकि हम देख रहे थे कि कौन सी पॉलिटिकल फिजा बन गई, थोड़ा-सा मुझे बताओ। अनरेस्ट, अच्छा, अ, कहाँ अटैक्स हुए पिछले दिनों। दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें जिस कंट्री ने की हैं और जो हर वक्त इन द स्टेट ऑफ वॉर रहता है, वो यूएसए है यार। छोड़ दो उसको फिर, नीले पासपोर्ट के पीछे तो मर ही जा रहे हैं सारे। हुँ। ठीक है, ये क्या बात है? और तुम और मैं जिस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिन लोगों के लिए कर रहे हैं, मतलब वो अनरेस्ट की बातें कर रहे हैं। वो कराची में कभी अच्छा मोबाइल लेके फिरे हैं गली में? मतलब क्या सो बात देयर यू गो, यू गॉट योर आंसर। है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ऐसा और हम वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ पे पिछले 15 साल में हमने कभी अपना घर लॉक नहीं किया, अपनी कभी गाड़ियाँ लॉक नहीं की। 100% ठीक ट्रू। है? जहाँ पे हमें कभी ये नहीं पता होगा रात को 2 बजे अगर हमारी बेटी घर से बाहर है, तो
कुछ अनसेफ हो सकता है उसके साथ। ये तो सिर्फ अंगूर खट्टे हैं शायद। इट्स एक्चुअली ट्रू। मैं पिछले 12-13 साल से यूएई में रह रही हूँ और हम बाहर के मुल्कों में भी ट्रैवल करने चले जाते हैं और अपना घर हमने कभी लॉक नहीं किया। हमारे आप इनको एड्रेस बता दो। ये एक बहुत बहुत छोटी शायद बात लगे, लेकिन देखने में ये बहुत बड़ी बात है कि आप क्या अपने अपने मुल्कों में ऐसा कर सकते हैं, और आज तक हमारी कोई चीज़ कभी नहीं हिली। नहीं नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने मॉल में अपना वॉलेट छोड़ दिया था, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई डोंट हैव इट, I was so chilled out and I told Abdullah that you bring the car, I'll go and get it, because I knew कि वो वहीं होगा और उसमें से कुछ भी नहीं हिला होगा। ऑफ कोर्स। तो ये गोल्डन वीजा अब और नहीं, जैसे मैं इस बात को एक और तरह से भी, एक और स्पेक्ट्रम से भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग एक और स्पेक्ट्रम से बात करें, ये जो अभी मिडिल ईस्ट अनरेस्ट आया था थोड़ा सा, वो वॉर की वजह से लोग मैक्रो लेवल पे भी बात कर रहे थे। तो यार मैक्रो लेवल पे मैं तो सिर्फ उन लोगों को ये बताऊंगा कि भाई, स्पेशली दुबई, ये अगर दुबई बना ना, तो ये आपके और मेरे पैसों से नहीं बना। राइट। यहाँ पे उन शार्क्स का पैसा लगा हुआ है वहाँ पे। आपको पता है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री फॉर हैविंग सेंटी मिलियनर्स आर दोज मिलियनर्स जो कि डॉलर्स में मिलियनर्स हैं, और दे आर अबव $100 million मिलियनर्स। तो यार, मेरे आपके पैसों के लिए नहीं ये दुबई खड़ा हुआ, ये जिनके पैसे लगे हुए हैं ना, वो बहुत बड़े पैसे हैं, और उनको कोई टेंशन नहीं है, वो और ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। आज और हम 2025 की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। अच्छा। एंड दुबई टॉप द लिस्ट ऑफ द बिलियनर्स। 9,800 बिलियनर ने सिर्फ अभी तक 6 महीने में ट्रैवल किया है, मूव किया, परमानेंट मूव किया यूएई के अंदर, विच इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। यूके माइनस में है, चाइना माइनस में है, इंडिया माइनस में है। यूएस में 38% लोग मूव हुए हैं, और रिमेनिंग मेजर अबव 60% जो परसेंटेज है, दैट हैज बीन मूव टू यूएई ओनली। राइट। तो अगर उनके अनरेस्ट पैसे है तो डूब फिर जाएंगे, तो साथ तुम्हारी मेरी दो चिंदियां डूब गई तो नहीं, क्या हो हम गया। हम लोग तो उन चंद लोगों में से हैं जो इस तरह की सिचुएशन में हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते हैं ओह, ब्यूटीफुल। कि मतलब जो जो I लोग was telling जाएंगे उनकी Abdullah that प्रॉपर्टी। if war is going on, then maybe the real estate will go down and we यस, should buy another टाइम टू बाय मोर। property. Okay, so coming back to the golden visa, अब golden visa किसी को मिल गया है तो उसके फायदे क्या हैं? ये मैंने कवर किया था लास्ट टाइम, बट हाँ, एक और हमें एक और कमेंट आया था कि इसाद और फाजा जो है वो बंद हो चुका है, वो बिल्कुल नहीं मिलता, और फाजा तो कभी किसी को मिला ही नहीं है। इसके बारे में क्या कहना देखो, चाहेंगे? इसाद के बारे में ये है कि वो कुछ गवर्नमेंट एंटिटी से जी। मुंसलिक रहा है, लेकिन फाजा के बारे में जिन लोगों ने कहा है, आई एम सॉरी मेरे बहन और भाई, जिसका रिजेक्ट हुआ होगा उसको नहीं मिला होगा। आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं आपको अपने फाजा कार्ड से शॉपिंग करा दूंगा। ओके। ठीक है, ठीक। मैं आपको डिस्काउंट लेके दूंगा। हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं, आप क्योंकि देखो, यूएई इज़ अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री। उन्होंने हर चीज़ की ना क्वांटिटी, हर साल के को चीज़, हर साल में उस चीज़ को लिमिट किया हुआ है। अगर कुछ चीज़ें एक लिमिट से ज़्यादा चली गई होंगी तो उनको रोक दिया होगा। सो अभी जो 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 क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए हैं, कोई नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कंटेंट क्रिएटर्स का। वो तो लाइसेंस है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स कैन हैव गोल्डन वीजा इफ दे हैव राइट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस, इफ दे हैव द राइट इन्फ्लुएंस, राइट। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन वाइज कुछ आप गाइड करें कि क्या यार क्या मैं पेपर्स बेसिकली चाहिए? बताना चाहता हूँ, मुझे तो अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा बिजनेस वर्ल्ड के लोग, जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लोग हैं। यूएई के अंदर एक फिनफ्लुएंसर का वीज़ा है। आपको पता है कि आज से पहले हमने जब इस कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल एडवाइजरी की कंपनी अगर रजिस्टर करनी होती थी, तो वो कितना टफ था। हम्म। ठीक है, आपको एस्का अप्रूवल चाहिए होते थे आपको अब वही वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आप एक फिनफ्लुएंसर हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप फाइनेंस के बारे में नो हाउ रखते हैं और आपका इन्फ्लुएंस है और आपकी फॉलोइंग है, तो वो आपको एक अप्रूवल दे रहा है कि जो कि आप बेसिकली लीगली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो अ सिंपल कंसल्टेंट who has that kind of a background has the opportunity to go through, और ये एक बहुत बड़ी opportunity है, और it holds a lot of worth actually. And KWS has started working with few people, like one is from Kuwait, one is from India. We are helping with them to get this, and hope so, inshallah. It just launched. If we get it, that means that's a big opportunity and people should think about it. अच्छा, अब एक और चीज़ है कि ये तो फाइनेंशियल रिलेटेड जो जिन लोगों के बैकग्राउंड है उनके लिए है,
बट जनरली अगर कोई भी हमें इस वक्त देख रहा है और वो कहीं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ पे भी वो हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका सफ़र कहीं से तो शुरू हो, तो आप यूएई में किस तरीके से एंटर हो सकते हैं? क्या ऑप्शंस है हमारे पास? यूएई में एंटर होने की सबसे इजी ऑप्शन तो ये है कि देखो, ऑनेस्टली आप ये अगर समझो कि यूएई इज़ नाउ ओपन फॉर एवरीवन, तो नहीं है। मतलब ओपन तो खैबर पख्तूनख्वा भी सबके लिए नहीं है यार, राइट। ठीक है? तो डूज़ एंड डोंट्स और येस और नो तो हर एक के लिए है। बात ये कि हाँ, आज से पहले यूएई ने, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ यूएई, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको पूरी दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स थे, उनको बहुत सपोर्ट किया आज तक, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। ईरान, इजिप्ट, मतलब यार मतलब तुम और मैं एक एग्जांपल ना थे कि आज पूरी दुनिया देखी है लेकिन यूएई के सर पे देखी है, अपने मुल्क से बैठ के नहीं देख सके थे, ठीक है? तो इसलिए, लेकिन जब कोई नहीं घुसने देता था, जब कहीं जाने की ताकत नहीं थी, तो इस कंट्री ने संभाला था। अब इस कंट्री का भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का लेवल अप हुआ है, इनकी अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनके अपने कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और इन्होंने उस हिसाब से देखना है कि अगर तो आप ये सोचो कि वीज़ाज़ जो है हर बंदे के लिए हैं, तो हर बंदे के लिए नहीं है। लेकिन आप में से अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, आप में से कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए हज़ार तरीके हैं, और उसके मैं पैसे लेता हूँ बताने के। ठीक है? लेकिन आप बिजनेस ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो लोग जॉब्स के लिए आते हैं, आप हम। ग्रेजुएट्स के लिए हैं, मतलब वो तो उन्होंने पहले से दिन से यूएई वाले कह रहे हैं कि इफ़ यू आर ग्रेजुएट, योर डिग्री इज़ अटेस्टेड एंड यू आर रिक्वायर्ड इन सम कंपनी फॉर विद योर टैलेंट, व्हाई नॉट? किसी का नहीं आज तक रुका वीज़ा, अगर रुका भी है तो दूसरी तीसरी दफ़ा में अप्रूव हो गया, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पर आना चाहते हैं और आकर यहाँ का वीज़ा भी रखना चाहते हैं और यहाँ की इकोनॉमी में भी कुछ ऐड नहीं करेंगे, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी थोड़े से फिशी हैं, और आपने आके मजदूरी ढूंढनी है, या एक आज़ाद वीज़े की टर्म है यूए दुबई पाकिस्तान में यूए के बारे में, या ये इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, यूए ने आज तक कभी आज़ाद वीज़ा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स नॉट लीगल। It's- अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे पास आज़ाद वीज़ा, और वो बड़ा उसको ग्लोरीफाई करके, कई दफ़ा मुझे बहुत हैरानी होती है हम्म, कि लोग आके बड़े ग्लोरीफाइड तरीके से कहते हैं हमें हमारे पास अपना वीज़ा है। हम्म, और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, अगर आपने वीज़ा ख़रीदा है तो वो एक इलीगल हरकत है। अगर आपने कहीं से भी वीज़ा लिया है, कोई भी ऐसा फ्रीलांस वीज़ा अवेलेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ यस। लीगल बुक्स कि आप जाके पैसे दें और ख़रीद लें। आपको किसी न किसी कंपनी को स्पॉन्सर करना पड़ता है। अगर मेरी कंपनी है तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर करूँगी और वो मेरी अंडर स्पॉन्सरशिप होंगे। और अगर कोई कंपनी वीज़े बेच रही है तो वो बहुत बड़ा और रेड फिर फ्लैग है। आप और फिर आप उसकी सैलरी के भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जी, आपको उसका वेज प्रोटेक्शन सिस्टम प्रॉपरली चलाना है, जी। ठीक है? तो वो मुझे नहीं समझ आती, तो इसलिए दुबई ने तो कभी भी इस तरह से वीज़े नहीं छिड़के। हाँ, हमने जो जिन चीज़ों को मिसयूज़ किया है, अब दुबई आपको वो मिसयूज़ नहीं करने दे रहा, तो आपको प्रॉब्लम है तो है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग वीज़ा खरीदते हैं, आज़ाद वीज़े वाली जो बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज भी नहीं होता, ठीक है? जो लोग मिसयूज़ भी हो जाते हैं। अब हमारे पास भी पाकिस्तान में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, इंडिया के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसमें लोग वाक़ई में ये समझ रहे होते हैं कि ये एक लेजिट वीज़ा है और हमने पैसे दिए और हमें मिल गया। तो इसके बारे में थोड़ा-सा और मेरे ख़्याल से हमें डिस्कस करना चाहिए कि अगर ये वीज़ा आपने ले लिया है पैसे देके और अगर आप पकड़े जाएँ, तो फिर क्या होता है? आप पकड़े अगर क्या मतलब जाएँ? आप 100% पकड़े जाएँगे। राइट। क्योंकि मैं वही तो बता रहा हूँ कि यूएई ने ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट ही इसलिए की हैं कि अगर आपको लगता है कि यूएई इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव बिकॉज़ वो आपको शेयर्ड अकोमोडेशंस नहीं दे रहा, वो आपको वीज़ा लेकर गायब होने का चांस नहीं दे रहा, तो वो अब इसलिए हुआ क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता सिस्टम्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड, और ये एक छोटा-सा कंट्री है जो कि बड़ा वेल कंट्रोल्ड है। यहाँ पे हर चीज़ का पता है। ये कोई इतना बड़ा कंट्री नहीं है, पूरा कंट्री कराची से भी छोटा है, ठीक है? तो आपका क्या ख़्याल है कि कंट्रोल भी कराची जैसा ही होगा? राइट। सो अगर कोई वीज़ा आपको बेच रहा है या आप वीज़ा खरीद रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको सेफ तरीके से एम्प्लॉयमेंट सोर्स करनी चाहिए। आप अगर और जॉब एक करना बात याद चाहते हैं। रखें, वीज़ा बेचना और ख़रीदना दोनों इल्लीगल चीज़ें हैं, राइट। दोनों चोर हो दोनों चोर हैं। कानून की नज़र में। हम्म। सो दैट्स इट।
तो अब ये जो अब थोड़ा सा एक और चीज़ ये भी है कि लोगों को लगता है कि ये वीज़ास बंद हो जाते हैं और ये क्यों बंद हुए हैं। अब जैसे हसन के साथ भी जब मेरी डिस्कशन हो रही थी तो वो मुझे ये पूछ रहे थे कि टूरिज़्म भी तो आता था पाकिस्तान से, कितना टूरिज़्म आता था और ये वीज़ास, बांग्लादेश के वीज़ास बहुत देर तक बंद रहे हैं। अभी काफ़ी सारी और नेशनैलिटीज़ हैं जिनके वीज़ास वक्तन-फ़वक्तन खुलते हैं, बंद होते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेन कॉज़ why UAE will put a ban on certain nationalities or certain passports and they won't allow visas? अच्छा, हसन को क्या लगता है कि क्या वजह होगी? हसन को वजह पता है लेकिन हम लोगों के लिए पूछना चाहते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, सब हसन्स को ये वजह बता, राइट। ठीक है? एक बात याद रखो, अगर तो किसी ने आपको ये एहसास से कमतरी दिया कि आप लोगों के वीज़ाज़ इसलिए बंद हुए क्योंकि आप एज़ अ नेशन आपके अंदर एटिकेट्स नहीं थे, आप लोगों की बीच पे जाके फ़ोटोएँ खींचते थे। अगर आपको किसी ने ये कहा कि आप भिखारी कौम हैं, ठीक है? आप लोग भिखमंगे हैं, तो आपके इसलिए वीज़े बंद हुए हैं। तो आप यकीन रखें आपकी कौम के सबसे बड़े भीख माँगने वालों के वीज़े अभी भी बंद नहीं हैं। तो अब हर बात मैं बताऊँगा नहीं, कुछ समझ भी जाना। ठीक है? ओके। ठीक है? आज मुझे एक और पिक्चर सबमिट हुई नज़र आई थी देखने में कि 2 हाँ, कंट एक्चुअली आई वांटेड टू कम टू दैट। यस So we've got a news today itself that there is some government on some government end. There is an agreement signed where Pakistan does not need to have a visa and it will be on arrival, which is too good to be true, to be honest. नहीं, नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे और अपने बेटे ईसा से एक वर्ड नया सीखा आजकल, वो है डिलुलु। ठीक है? या देखो, मैं यहाँ पे बैठ के आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कभी भी चीज़ बात पॉलिटिकल ना करूँ और पॉलिटिसाइज़ ना करूँ। लेकिन एक चीज़ होती है कॉमन सेंस, जो हमारे रीजन में रहने वाले लोगों में अब आ जानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए ये जो 2 लोग खड़े हुए थे ना वो फाइलें लेके, उन फाइलों में उनके लिए कभी भी कुछ नहीं होगा। मुझे अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस वीज़ा को लेके, अभी भी न्यूज़ आई है। ठीक है? लेकिन जो 2 लोग उस मीटिंग में थे, अगर आपको लगता है आज 70 साल के बाद भी कि वो उस मीटिंग में वो इंसान इसलिए बैठे होंगे कि वो आपके लिए कुछ ले रहे होंगे, तो वो आपके लिए नहीं लेने बैठे। अगर उस फाइल के अंदर फ़ायदा होगा तो शायद किसी हाई नेटवर्थ बंदे का होगा, जिसको आप इशराफिया कहते हैं। अगर उस फाइल से फ़ायदा हुआ तो किसी डिप्लोमेटिक लेवल पे होगा। अगर उस फाइल में कोई फ़ायदा हुआ तो मेरे ख्याल से कोई इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे होगा। लेकिन उसमें से उस बच्चे का फ़ायदा नहीं है जिसने नौकरी ढूँढने आना है यहाँ पे। उस मज़दूर का फ़ायदा नहीं है जिसने ज़ेवर बेच के रखा हुआ कि उसने अब जाके मज़दूरी ढूँढनी है अपनी बीवी का। उस बच्चे का फ़ायदा नहीं है जिसने सोचा कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, मुझे यहाँ पे तो शायद जॉब नहीं मिली, मुझे वहाँ पे जाके जॉब मिल जाए। उसका फ़ायदा नहीं, ये उस फ़ाइल में उसके लिए कुछ नहीं। तो फिर क्या करें? फिर अगर फ़ाइलों से हमें फ़ायदे नहीं मिल रहे तो हम एज़ अ नेशन, एज़ एन इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में एज़ एज़ बिज़नेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोफेशनल्स जो बैक इन द कंट्रीज़ बैठे हुए हैं, हम हर वक़्त हर चीज़ के लिए अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख भी नहीं सकते और हमें देखना भी नहीं चाहिए। अगर स्पेशली हम इस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमें पता है कि हम होपलेस हो चुके हैं, तो फिर हमने कैसे इस चीज़ को अपने एंड पे कैसे इस चीज़ को कवर करके अपने आप को खड़ा करना है? देखो, मायूसी गुनाह है। मायूस होना गुनाह है। मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हज़रत अली का कौल है ना कि आज़माए हुए को आज़माने वाला अहमक होता है। तो मायूस नहीं आपको होना चाहिए, लेकिन आपको अहमक भी नहीं होना चाहिए। हुँ, तो अपने लिए आप ही ने स्टैंड लेना, ये आपको पता होना चाहिए, हुँ। ठीक है? ज़िंदगी में मैंने अगर कुछ किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की ना, तो वो मेरी माँ थी और उसके बाद धरती माँ थी। तो एक को मैं 15 साल पहले छोड़ आया और एक मुझे 5 साल बाद छोड़ गई। तो जिसको मैं 15 साल बाद छोड़ के आया था ना, मैं उसके पास हर साल जाता हूँ और मुझे लगता है कि उसको किसी और टाइप के बेटे चाहिए। वो मैं नहीं हूँ। ठीक है? तो ये आप लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपको अगर ये सोचना है कि ये सिस्टम आपको कहीं सपोर्ट कर देगा, कुछ ऐसा करना है, तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि मायूस हों, लेकिन शायद इसमें कहीं अहमक होने का लेकिन हर आंसर है। हर वक़्त कंप्लेन भी ना करें, देखो, आई कंप्लेन थिंक। मैं तो पाकिस्तान में इस दफ़ा जाके बड़ा इंस्पायर हूँ।
मेरे कहने का मतलब है पहली दफ़ा मैंने यूथ देखी है जो सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं है। वो चाय एंटरप्रेन्योर्स इतने अच्छे पाकिस्तान में निकले हैं। वो कड़ा खेल मैंने देखा, मैंने जॉर्ज टाउन की पूरी लेन्स देखी, चाय स्टूडियो तो पता नहीं क्या-क्या। क्या खूबसूरत चाय एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने तनूर एंटरप्रेन्योर्स देखे वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारी मेंटालिटी में। लेकिन जहाँ पे पॉजिटिविटीज़ की बात करनी, मैंने कोई कहा ना मेरे पास उम्मीद रखने को बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो शायद वो वाले बच्चे बाद में अपने बिजनेसेस को मल्टी लेवल पे लेकर जाएंगे। तुमने और मैंने दुबई के अंदर चाय एंटरप्रेन्योरशिप देखी है। हमने लंदन का चाय बिलियनर भी देखा और हमने फिली भी देखा है। राइट। ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योर्स हमारे कंट्री से भी निकल सकेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान में हर बंदा इन्वेस्टर है, कोई बंदा बिजनेसमैन नहीं है। मैं यही बेसिकली इसी पॉइंट को ड्राइव करने की कोशिश कर रही थी कि हमारे जो भी स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस भी हैं पाकिस्तान में, वो भी ग्लोबल नहीं जाना चाहते। अच्छा, मुझे हमारे बताओगी पाकिस्तान में एस्टैब्लिश बिजनेसमैन कौन से हैं जो क्यों ग्लोबल लेवल नहीं के है हैं? आपके, मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर आप अपना कोई रेस्टोरेंट है, फाइन डाइनिंग एक भी रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान में जाएं, आपको हर कोने पे फाइन डाइन मुझे रेस्टोरेंट ये मिलता है। बताओ ज़रा, पाकिस्तान में पाकिस्तानी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट तुमने कितने बहुत देखे? अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं, हैं। नहीं, मैं मानता हूँ। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में भी हर बंदा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट समझता है कि वो कोई अंग्रेज़ी खाना होना चाहिए। कभी चीनी जाके चाइनीज़ खाने के अलावा कोई और नहीं, खाना वो बेचता है? वही तो बात है ना कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे? जो चीज़ आप बेचते हैं, जिस चीज़ में आप बेहतरीन हैं, जो व्हाटएवर इज़ योर स्किल सेट अगेन। आप समझते ये हैं अंदर से कि आपके फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन यू डोंट हैव अ प्राइड ऑन देम। हुँ, अगर आपको उन पे फ़ख्र होता तो आपने ज़रूर उसके लिए कुछ किया होता। क्योंकि जो लोग क्रिएटर्स हैं उस फ्लेवर के, जो लोग उस पे कह लो अच्छी उर्दू में यदे तूला रखते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम आज भी देख लो, मैं देखता हूँ, मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम होता है। हम यहाँ पे खुलने वाले हर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में और यहाँ पे लगने वाली हर पाकिस्तानी फिल्म इसलिए देखने जाते हैं कि ये पाकिस्तानी, इसको हमने ज़रूर सपोर्ट करना है। करेक्ट। ठीक है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि हर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अपना रेस्टोरेंट इस चक्कर में सबसे सस्ती और सबसे छोटी जगह पे ये इसलिए खोलता है कि उसको सबसे ज़्यादा शक अपने बिजनेस पे खुद होता है कि अगर बंद हो गया तो। यही बात है। यही बात हम लास्ट टाइम ही डिस्कस कर रहे थे कि लोग हमारे यहाँ पे सिर्फ़ ये सोचते हैं और देखते हैं, और ये सिर्फ़ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये बाकी खित्तों में भी महदूद है कि आप आज क्या खर्च रहे हैं? आपने आज क्या लगाना है? ओहो! ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आप बेसिकली यही सोच रहे हैं कि मैंने जो लगाना है वो डूब जाना है। वो डूब जाना ये है। आपकी मैनिफेस्टेशन है। हुँ। ठीक है, जिंदगी में अगर किसी को पता हो कि मैं अभी एक एक कतरा फेंकूंगा और उससे 5 कतरे सोना निकलेगा, तो लोग अपना खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ देंगे वहां पे। तो लोग खुद ही डाउट कर रहे हैं अपने आप को, तो इसलिए वो कम आप से कम हाँ, पैसे लगाना चाहते हैं ताकि डूबे तो कम ही डूबे। हाँ, ये हाँ, यही तो बस बेसिकली यही बात है। है। राइट, तो अभी तो ये इसी चीज, यही वाला एटीट्यूड एंटरप्रेन्योरल नहीं है। ये एक इन्वेस्टर एटीट्यूड ही है। अगेन यस, यस, देख लिया। क्या आप प्रॉपर्टी में डालें? यस, हर बंदा तो प्रॉपर्टी डीलर है। आपको पाकिस्तान पाकिस्तान को तबाह ही, फिर मतलब इस चीज़ को पॉलिटिकली मत लेके जाइएगा, लेकिन पाकिस्तान को तबाह ही ये रियल एस्टेट ने किया। हर बंदा घर लेट के सोचता है कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। उसको ये नहीं पता कि वो चाय का ढाबा खोल के 10 लोगों को नौकरी दे सकता है। तुम 20-25 लोगों को नौकरी दे रही हो पाकिस्तान में। ठीक है, वही तुम्हें पता है उनकी जो मंथली सैलरी है, 4 महीने की सैलरी छोड़ के डिफेंस में 1 कनाल का प्लॉट बनता है। हर 4 महीने बाद अगर तुम एक एक प्लॉट ली जाओ और 2 साल बाद अगर तुम उनकी इनकम लगा दो, तो तुम्हारे ये जो बीस लेकिन पच्चीस लोग। अब्दुल्ला, ये बात सिर्फ पाकिस्तान की हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम और भी सारे, जो हमारा एक पूरा एक रीजन है जिसमें इंडिया भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें और भी सारे हु इज मुल्क हैं। मोस्ट सफरिंग? दैट्स अनदर स्टोरी, बट दैट नो द दैट द इज द पॉइंट दैट आई इज एम अ पेन आस्किंग, पॉइंट। मैंने वही कहा ना, माँ को जरूरत नहीं है मेरी, लेकिन मेरी तो माँ ही है ना। नहीं, लेकिन हम सिर्फ उस एक पॉपुलेशन को केटर नहीं करना चाहते ना। अक्सा इंडिया का मैं ना ये तो चाहती वीज़ा हूँ। बंद हुआ है। ठीक है, तुम्हें पता है बांग्लादेश की पॉपुलेशन के हिसाब से उनके अभी तक खुलने वाले बिजनेसेस का नंबर हमारे परसेंटेज से ज़्यादा है। ठीक है, तुमने खुद कितना ज़्यादा बांग्लादेशीज के साथ बिजनेस किया है? राइट, तुमने देखा है उनका बिजनेस लेवल? हम बचपन में कहते थे कि टके जैसी औकात नहीं। हाँ, तो देख लो अब टका, अब टका तुम्हारी टके हमसे जैसी पीकेआर से कहीं आगे जा चुका अब तुम्हारी टके जैसी औकात होगी तो यू आर इन प्रॉफिट। है। चलें जी, बैक टू द गोल्डन वीज़ा।
तो अभी अगर किसी को गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना है, मैंने आपको बता दिया है कि उसके क्राइटेरियाज़ क्या हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या है, उसका प्रोसेस कितना टाइम लगता है गोल्डन वीज़ा की अगर देखो, यूएई के अंदर गोल्डन वीज़ा सवाए इसके कि यू आर नॉट अ इन्वेस्टर, उसके अलावा वाला हर गोल्डन वीज़ा चांस पे है। ना उसकी कोई टाइमलाइन है, ना उसकी कोई कंफर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा और अगर हमने ये पैसे दे दिए तो अगर ये पैसे फिर वापस कैसे मिलेंगे, रिफंड कैसे वही होंगे? वाली बात ना, डूब जाएंगे सारे हाँ, हिसाब लगा रहे हैं कितने डूबने हम लोगों को हैं। जो भी लोग रीच आउट कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी फीस आप पे कर रहे हैं वो फीस रिफंडेबल नहीं होगी। हमने पहले ही बहुत वर्क अराउंड करके मिनिमम प्राइस तय की है बिकॉज वी वर गेटिंग सो मेनी इंक्वायरीज कि हम आप लोगों को ये नहीं कह रहे कि आप पूरी एप्लीकेशन फीस एक साथ पे करें, यू जस्ट पेइंग अ नॉमिनल फीस which is a fee for us to prepare your application, to prepare your profile and to submit to the authority. अगर अथॉरिटी उस चीज़ को अप्रूवल नहीं देती है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है और ना ही हमारी वो सारी मेहनत जो हमने की है वो सारी ऑफ कोर्स हम उसको रिफंड नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली आपको जो भी मुझे रीच कर रहे हैं लोग उनको ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए ज़रूरी है कि प्लीज़ वो फीस रिफंडेबल नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको पार्शल पेमेंट्स में डिवाइड कर चुकी हूँ। और वैसे अगर अप्रूवल तुम्हारे हाथ में होता तो ये तो दुबई गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी है, इतना सस्ता तो नहीं देना था। और डॉक्यूमेंट्स वाली बात हमने शायद बीच में छोड़ दी कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए मेजर तो क्या क्या डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में करना है आपसे। हम्म ठीक है, every document has to be attested and notarized and it should have the value, like जिस तरह सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए अब उनकी डॉक्यूमेंट, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अचीवमेंट डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। हम्म वो ऐसे नहीं, वो डॉक्यूमेंटेड ऐसे भी हो सकती हैं कि उसके फॉलोअर्स भी नज़र आ सकते हैं आपको, हम्म या अगर वो कोई एक्टर है या एक्ट्रेसेस है उसको कोई अवार्ड्स मिले होंगे उनके हम्म साथ। अब जैसा हम तुमने इस दफ़ा नोटिस किया, हमने जब चेक किया आपके अवार्ड शोज़ में कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक मूर्ति हाथ में पकड़ा देते हैं, साथ रिटर्न हाँ, सर्टिफिकेट्स नहीं देते। सर्टिफ़िकेट नहीं मिलते। अभी क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ हाँ, सेलिब्रिटीज़ का और हाँ, वो एक एक सेक्शन है गोल्डन वीज़ा के लिए जिसमें आपको उस 5-6 चीज़ों में से कम 3 में फ़ॉल हुँ। करना तो ज़रूरी है। इसलिए आपको जो अवार्ड्स देने वाले लोग हैं, थोड़ा-सा उनको भी बता दीजिए कि वो साथ एक उसको सनद दिया करें, ताकि वो उन सेलिब्रिटीज़ को अपने करियर्स में इस्तेमाल करनी हो सकती है। वैसे ये कितनी अजीब बात है कि आपको अवार्ड मिल रहा है और आपको एक सर्टिफ़िकेट नहीं मिल हुँ। रहा साथ। तो हाउ वी शुड टेक अ फ़ोटो ऑफ दैट अवार्ड एंड पुट इट देयर, वेरी स्ट्रेंज। तो वही एक साइन स्टैम्प्ड, एक प्रॉपर्ली वाटरमार्क के साथ एक अच्छा सर्टिफ़िकेट भी साथ बना दिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, अगर एक कोई और देता है बड़ी तो। इम्पोर्टेंट चीज़ है शायद कल परसों हम बात कर रहे थे कि ये जो अभी एक क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक वी शुड डू अनदर एपिसोड ऑन दैट। जो लोगों ने कंपनीज बनाई हुई हैं सिर्फ वीज़ाज़ के लिए कि हम एक कंपनी खोल लेते हैं, शेल कंपनीज़। शेल कंपनीज अजमान या दूसरी एमिरेट्स में, नॉर्दर्न एमिरेट्स के अंदर जहाँ पे सस्ती कंपनी खुलती है जस्ट टू गेट द वीज़ा। अच्छा, अगेन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा-सा अपने साउथ एशियन साइड पर हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली ये बताना चाहता हूँ। भाई, ऐसे वो लोग जिन्होंने कुछ इस तरह की कंपनीज खोली हुई हैं, मैं वो वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ की कोई ना कोई गवर्नमेंट हर फ्री जोन को सपोर्ट कर रही है। भाई मत खोलो, वहाँ पे पाकिस्तानियों को पार्टनर वीज़ा भी नहीं मिलता, बीवी के नाम पे खोलोगे तो स्पाउस वीज़ा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उनके इमिग्रेशन ने पाकिस्तानियों के स्पेसिफिकली वीज़ाज वहाँ से बंद किए हुए हैं और ये भी बात कोई स्पेसिफिकली नहीं करेगा। पता नहीं ये भी लीगल जुमरे में आती है या नहीं आती, लेकिन टू माय नॉलेज मेरे क्लाइंट्स को नहीं मिल रहा वहाँ से। ठीक है, उसी सेम क्लाइंट को अच्छे फ्री जोन से दुबई से करके मिल रहा है। Again, what we discussed last time that you should hire a consultant. No, Consultant. good consultant, Good when you pay consultant. peanuts you get monkeys. Yes, you don't hire I could be a monkeys. monkey to anybody also, but To me. yeah, 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 but you still cannot pay me peanuts. That's it. Yeah, so there are a couple of that also we discuss we covered last time that people, especially these countries which we are targeting right now, not targeting but discussing about, they do not think that consultant is an important person and ये they मैंने shouldn't हसन को be. भी बताया था कि अपनी साइड के लोगों का ना प्रॉब्लम ये है, देयर बेस्ट इज द चीपेस्ट। Hmm. चीप इज चीप, and if you do not have enough courage to understand that you opt for something cheap and you'll get for because you choose cheap, that's why you are getting a cheap treatment.
So it's Even your choice. our own family and friends, a lot of people, when they reach out to us, they kind of think okay, we are very expensive because So, we give them the solutions which are suitable to their requirements and needs. We don't offer them of okay, course. you go here because it's cheaper, because we know as consultants, as people in business, that what are the consequences if you register certain companies in certain areas. अच्छा, अगर ना भी हो अक्सर वो कॉन्सिक्वेंस, मुझे ये बताओ, ज़िंदगी में आज तक कोई भी चीज़ अगर चीप मिल रही हो तो कभी जेन में आया नहीं कि कैन एनीथिंग बी चीप विदाउट अ रीज़न? मेरे जहन में तो नहीं आया, लेकिन लोगों के जहन में आता है। लोगों को ये लगता है कि दूजा लुट रहे लोगों को लगता हैं। होगा कि शायद कोई डील मिल गई है हमें। पता नहीं। अब तुम और मैं आजकल एक चीज़ बाय करने फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, ठीक है? राइट। सबसे पहले तुमने देखा कि हमने जब जाके उसको कहा कि वही चीज़ जब खड़ी हुई थी तो हमने कहा ये सबसे सस्ती ये गाड़ी की बात हो रही है। मार्केट में है। तो हम पूरी दुनिया घूम के हम उस बंदे के पास गए तो पता लग गया ना कि वो क्यों चीप थी। बिल्कुल। उसने कहा दैट्स अ फ्लडेड कार। When you pay peanuts, यू you गेट get monkeys. And there is another one, when you save pennies, you लूज़ lose पाउंड्स। pounds. So please don't do that. Especially हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं और जो बाकी भी लोग हमें देख रहे हैं, consultants are very important people, because not because कि वो unnecessary expense है, आप जाके खुद ऑफिस में जाके कंपनीज बना सकते हैं और आप बस उसके बाद जब अगर अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कंसल्टेंट हायर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मैं बज़ाते खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को रिफ्यूज़ कर देती हूँ कैटर करने से, जिनकी कंपनीज़ मैंने नहीं बनाई होती। और अक्सर क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने ये कम किसी ने अगर आपको ये कंपनी दे दी है, तो वो आपने ले भी लिया क्योंकि वो सस्ती थी, बट आपको वो सूट ही नहीं करती, आपकी प्रोफ़ाइल को सूट नहीं करती, मैं आपका अकाउंट नहीं खुलवा सकूँगी। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट जॉब। कंसल्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि बीइंग अ कंसल्टेंट फॉर फ्यू प्रोजेक्ट्स आई आल्सो हैव टू हायर अ कंसल्ट। कंसल्टेंट। दैट्स करेक्ट। आप तुम्हें पता है कि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहा हूँ, उसकी उसके लिए जो हमें फोरकास्ट रिपोर्ट्स बनानी है और सारा कुछ करना है, हमें उसके लिए एक अलहदा फोरकास्टिंग कंसल्टेंट हायर करना पड़ा है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, ये चीज़ें सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जो है ना कि अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं। हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आप जो काम करते हैं वो मुझे नहीं करना आता। ठीक है, आप मेरे काम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आपको वो देखने में आसान करना है, इट्स ओके, बट यू एंड अप सफरिंग। Okay, so pay some money and hire a consultant. That's for your own security, and that's for your own safety, because a consultant, and especially a good consultant, a professional one, and you can have your research done. You can read the reviews. You can see what is their online presence. इस पे भी ये एक अदर टॉपिक है कि कंसल्टेंट्स को कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज फुल ऑफ देम, and of course if somebody is selling some kind of solution which is not suitable to that client, that means that consultant also misguided these people. हम्म। तो वो भी आपको आना चाहिए कि आप कैसे डिफरेंशिएट करें कि आपका ये कंसल्टेंट सही है और ये नहीं सही है, तो वो उस पर हम मेरे ख्याल से दोबारा कभी बात करेंगे। अच्छा देखो, तुमने जिस दिन कंसल्टेंट हायर करनी होती है नौकरी पे, तो किसी कंसल्टेंट को तुम 10,000 की नौकरी पे रखो और किसी को 3,000 की नौकरी पे रखो, दोनों में क्या फ़र्क होगा? नॉलेज का फ़र्क होगा, हाउ दे आर परसीविंग द बिजनेस, हाउ दे कैन डिलीवर द सर्विस, ऑफ कोर्स देयर सो मेनी थिंग्स ये टू इस लोगों को सोचना चाहिए जब वो फीस दे रहे होते इट। हैं कि कोई तीन लोग हजार का लोग क्यों थोड़ा और सा कोई ये भी 10,000 देखते का हैं क्यों? कि स्किन कलर क्या है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म भी बहुत होता है हमारी फील्ड में। नहीं नहीं, मेरी फील्ड में मुझ मेरे साथ ये वाला रेसिज्म उसने नहीं किया जिसकी स्किन मुझसे ज़्यादा गोरी दैट्स थी। ट्रू एक्चुअली। ठीक है, दैट्स ट्रू। ठीक है, और तुम्हारा मेरा तो 90% क्लाइंट वही है। मेरा मेरा एक ऐसा भी एक्सपीरियंस हो चुका है जिसमें मुझे मेरे अपने ही कंट्री वालों ने कहा था कि आप पाकिस्तान से होकर इतने पैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। So that's there as well. So we are signing off. And any message you want to give, Abdullah, to our audience, to the people who are watching us? Any tips? Anything you would like to say? Guys, keep watching us, don't troll us. And yes, there is one advice which I got from one of a very dear friend's father. He said that बेटा, अगर अपने अलावा किसी और के लिए, अपनी नस्लों के लिए कुछ करना है तो नौकरी ढूंढने के बजाय कारोबार कर लेना। So please follow this. That's all I think for today, and it seems that we have to do it quite often, और हमें और ज़्यादा एपिसोड्स रिकॉर्ड करने चाहिए जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अपने इस चैनल को हम एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं 100%, एंड इंशाल्लाह going forward you will be watching us more and more. If you have any questions related to
UAE government, lifestyle, business related questions, visas related questions, or otherwise, you can comment or you can message us. You have our email address mentioned on our website, जो कि यहाँ नीचे भी चल जाएगा, तो आप हमें रीच कर सकते हैं. और for today, for now, I think we're signing off. And thank you very much for your time. And thank you very much, Abdullah. Thank Thank you. you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.